यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaur Hari, Nitai Gauranga, Gaur Hari, Nitai Gauranga, Gaur Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sachinandana Gaura Hari, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol,
राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद तिरोभाव दिवस की जय। राधा माधव सखी की जय। गौर निताई पंचतत्व की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तीनों हरे कृष्ण हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है। आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस है। आपको पता ही कौन है? नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है, भक्ति वेदांत स्वामी जो हमारे श्रील प्रभुपाद है उनके गुरु महाराज है, उनके गुरु है वो। मतलब कि आज जो है ना, आज के दिन वो भगवत धाम वो चले गए थे। भगवत धाम से आए थे और भगवत धाम को चले गए। ये जो मिशन है, ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट, ये मिशन है, ये उन्हीं का ही मिशन है जो आगे कंटिन्यू श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। वही चीज़ है,
ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़। आवाज जा रही है पीछे तक प्रभु जी नाम माता जी नो पीछे तक जा रही है ना? नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखेंगे। यहाँ पे जो प्रभुपाद है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो जो ये जो प्रभुपाद नाम पड़ता है, प्रभुपाद का मतलब होता है कि प्रभु का चरण। प्रभु मतलब कौन? जो कृष्ण है, उनका चरण। उनका चरण जो है श्रील प्रभुपाद, जो हमारे एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनको बोला जाता है। तो आज उनका जो है तिरोभाव दिवस है, तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, इसलिए 12 बजे तक फास्टिंग भी किया जाता है। तो हम सब जो है यहाँ पे बैठे हैं इस रामगढ़ की इस बहुत महत्वपूर्ण जगह में। यहाँ पे जो है ना, ये रामगढ़ बोलते हैं, राम का ये जगह है, राम का गढ़ है ये, भगवान राम का। तो बहुत ही अद्भुत प्लेस है ये, मगर लोग जो है इन सब चीज़ों को नहीं जानते। सब हम इस संसार में इतना घिरे रहते हैं कि हम सब भूल गए हैं अपने जो वास्तविक जो तत्व है, हम अपने आप को भूल चुके हैं। इस संसार में इतना ज़्यादा घिर गए कि हम सब कुछ भूल गए हैं, और इस संसार में ही सब कुछ हम रमन करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो है ना, अपने जो है ना, जो उनका जो सबसे मेन चीज़ है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, उन्होंने श्रील प्रभुपाद को, मतलब जो उनके गुरु महाराज, उन्होंने बोला कि आप जो है ना ग्रंथ लिखिए। उनको प्रीचिंग का कैसा करके उन्होंने बोला ग्रंथ लिखने के लिए। अब ये ग्रंथ लिखने को उन्होंने क्यों बोला? ग्रंथ लिख के मतलब उन्होंने बोला पाश्चात्य देश में आप जाइए, वहाँ जाके आपके पास जब भी पैसा हो तो आप जो है ना ग्रंथ लिखिए, और ग्रंथ लिख के जो है वो करिए। तो ये उनका गुरु का ऑर्डर था। तो प्रभुपाद जो है, जब वो अपने गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तो जाके वो बहुत बड़े लेवल पे मतलब वो पूरा प्रीचिंग की है उन्होंने। तो ये जो बुक्स है, जो श्रील प्रभुपाद की ये बुक्स है, ये कोई साधारण किस पुस्तक नहीं है। हम प्रायः सोचते हैं जैसे मार्केट में एक पुस्तक है, वैसे ये भी एक पुस्तक है। ऐसा नहीं है। इस पुस्तक में जो बातें बताई गई हैं वो इस जगत का नहीं है, इस संसार का नहीं है। हम प्रायः क्या देखते हैं, न्यूज़पेपर हम देखते हैं, या हम टेलीविज़न में देखते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं वो क्या होती है, इस संसार का होता है। लेकिन ये जो पुस्तकें हैं, श्रील प्रभुपाद के बुक्स है, वो इस जगत का बातें नहीं करती। वो इस संसार से परे जो भगवान का जो जगत है उसके विषय में बात करती है। ये जो है हम सबको अपने जो वास्तविक जो एक्चुअल जगत है, जहाँ पे हमें जाना चाहिए, उसके विषय में बात करती है, जो वास्तव में हमें बात करने के योग्य है। बोला जाता है कि जो प्रजल्प का मतलब होता है कि अगर हम भगवान के बारे में या जो एक्चुअल चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ भी हम संसार की बातें कर रहे हैं, तो प्रजल्पा है। तो जो प्रभुपाद के बुक्स है, जो स्पेशली जो छोटे छोटे बुक्स है, वो कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इसमें पूरा भागवतम का, पूरा भगवत गीता का पूरा सार दिया हुआ है छोटे से पुस्तक में। अगर कोई सोचता है कि मैं इतना पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, तो उनको जो है प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स पढ़ना चाहिए। स्मॉल बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है। तो ये क्या है इसमें आखिर, आज हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रभुपाद एक भूमिका में बताते हैं, इसको बताने से पहले मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनमोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जो है बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। प्रभुपाद केवल डायरेक्ट पॉइंट की बात बताते हैं जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए। संप्रति हम मुख्यतः दो विषयों के लेकर चिंतित रहते हैं, एक तो स्वयं के बारे में तथा दूसरे उस स्थान के बारे में जहाँ हम रहते हैं। यहाँ भी प्रभुपाद बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि इस संसार में लोग केवल दो चीज़ के बारे में बात करता है आजकल। क्या चीज़ के बारे में? अपने बारे में। अरे हम कैसे सुखी रह सकते हैं, मेरे को कैसे आनंद मिलेगा, मैं कैसे जो है ना कुछ मैं बड़ा करूं, या मेरे बारे में। लोग अपने बारे में बात करना चाहते हैं कि ना मैं कितना बड़ा काम कर दिया, देखो आज मेरे से जो है ना इतना बड़ा हो गया। फिर लोग बात करते मेरे को अच्छा मार्क्स लाना है, मैं देखो क्लास में टॉप मार दिया। तो लोग ज़्यादातर अपने बारे में बात करते हैं। मैं बहुत बड़ा घर बना दिया, मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ, मैं बहुत बड़ा मतलब मैं ये कर दिया हूँ आज दुनिया में, मेरा जैसा कोई सुंदर नहीं है, मेरा जैसा कोई ताकतवर नहीं है। तो लोग अपने बारे में बहुत बात करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग मेरे को पहचाने। लोग अपने आप को मतलब सोशल मीडिया में फेमस करना चाहते। क्यों? क्योंकि लोग किसको पहचाने? मेरे को, मैं फेमस हो जाऊं, मेरे को सब अपना जब जान दे जाते। इसको बोलते हैं मतलब कि अपने आप को, मतलब लोग अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं। हम सब अपने आप को शरीर मानते हैं। जो शरीर है, जो 5 चीज़ों से बना हुआ है ये शरीर, इसको हम अपने आप को मानते हैं। तो हम अपने आप को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए हम ज़्यादातर बात करते रहते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। फिर एक दूसरा जो लोग प्रायः बात करते हैं इस जहाँ वो रहते हैं उस स्थान के बारे में। दूसरा उस स्थान के बारे में जहाँ हम रहते हैं। तो प्रायः हम देखते हैं कि जैसे हम जिस भी स्थान में रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे रामगढ़ के बारे में रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ क्या चल रहा है, आजकल क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, कौन जो है ना मैच में आज कौन जीत रहा है, कौन जो है ना भारत में आजकल अगला कौन मतलब ये बनेगा, कौन मतलब कि अगला जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन मतलब अगला जो है मैच कौन जीतेगा, कौन फुटबॉल में कौन ये करेगा। हम जहाँ रहते उसको हम आगे कि आज हमारे घर में क्या हुआ। फिर न्यूज़पेपर में आते रहता है कि आज जो है ना ये स्थान पे ये कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ हो रही है। तो हम प्रायः क्या करते हैं? इसके बारे में बात करें, इस स्थान के बारे में। तो इसी में ही पूरा जिंदगी जो है ना निकल जाता है। प्रायः किसके बारे में? अपने बारे में बात करते करते, और इस जहाँ हम रहते हैं उसके बारे में बात करते करते, और ऐसे करते करते पूरा जिंदगी निकलते जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि दूसरे शब्दों में हम दो विषयों का ज़्यादा चिंता करते हैं, उन सभी वस्तुओं की जो हमारे स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से संबंध है। तो हम जो अपने आप को, जो शरीर है हमारा, जो शरीर है, हम लोग जानते हैं कि ये क्या हमारा, ये हम लोग शरीर है, ठीक है ना। हम लोग को ये हम लोग की शरीर मिला है, तो हम लोग अपने आप की शरीर मानते हैं। तो ये शरीर ना 2 प्रकार का होता है। जैसे जब हमारा जब मृत्यु होता है, तो मृत्यु के बाद क्या होता है कि ये जो शरीर है छूट जाता है। तो शरीर जब छूट जाता है तो फिर उसमें से कौन निकल जाता है? आत्मा निकल जाता है। तो बहुत लोग जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो सो कॉल्ड, जो आजकल जो हम मटेरियल एजुकेशन लेते हैं, वो अपने आप को बहुत गर्व करते हैं कि बोलते हैं कि मैं आत्मा तो होते नहीं, मैं तो देखा नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ। तो लोग नहीं मानते आत्मा के बारे में। मगर प्रायः जो स्पेशली जो भारतीय है, उनको पैदाइशी जो इतना पता होता है कि हाँ आत्मा होती है। बाकी तो ऐसे जो एकदम पूरा नए नास्तिक हैं, उनको ये भी तक नहीं पता होती है। तो हम सब आत्माएं हैं, हम सबको एक शरीर मिला है। शरीर भी 2 प्रकार का होता है। एक शरीर जो हम जो अपने आंखों से देखते हैं, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, जो कि 5 चीज से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और स्पेस हो गया एक तरह से। तो 5 चीज से बना हुआ है। तो ये आकाश से, ये 5 चीज से बना हुआ जो शरीर है, क्या होता है? मरने के बाद चला जाता है ये। लेकिन हम क्या करते हैं? इसी शरीर को कितना से कितना ज़्यादा हम सुखी करें, इस शरीर को हम इतना आसक्त रहते हैं कि शरीर के बारे में ज़्यादा हम अपना प्रयास करते हैं कि शरीर को हम और ज़्यादा जो है श्रृंगार करें, तो एकदम सजाए, ये शरीर हमारा कितना सुंदर है। इस शरीर को जो इंद्र तृप्ति, इस पर हम ज़्यादा लगे रहते हैं। इस शरीर के बारे में ज़्यादातर, जैसे जीव की तुष्टि में, कान की तुष्टि में, ये जो पूरा इंद्रिया है, इसको जो है ना हम सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। तो ये हो गया एक स्थूल शरीर। फिर एक आता है सूक्ष्म शरीर, जिसको जैसे आप लोग जानते हैं ना, जैसे कि भूत प्रेत के बारे में। तो जो भूत प्रेत होते हैं उनके पास भी एक शरीर होता है। वो कौन सा शरीर होता है? सूक्ष्म शरीर होता है उनके पास, जो किससे बना होता है? मन, बुद्धि और अहंकार से। तो जैसे क्या होता है, जो बहुत पापी लोग होते हैं ना, अत्यधिक पापी,
जो पूरी तरह से पूरा एकदम घर परिवार समाज इन सब इतना ज़्यादा आसक्त होके पूरा इतना ज़्यादा पाप कर्म करते हैं, तो वैसे लोग मरने के बाद क्या होता है, वो लोग ना पूरा प्रेत आत्मा बन जाते हैं। तो जो प्रेत आत्मा बन जाते हैं वो क्या करते हैं, भटकते रहते हैं, इसी क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिलती। तो प्रेत बन के उनके पास जो है स्थूल शरीर नहीं होता, तो वो जो स्थूल शरीर है उसमें वो भोग करना चाहते हैं। हम इस शरीर में क्या चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। तो इस भोग करने के लिए जो है उनको शरीर चाहिए होता है, मगर वो शरीर मिलता नहीं है, तो आत्मा बन के भटकता रहता है। तो ये ऐसी स्थिति होती है जब बहुत पापी, जैसे किसी कोई आत्महत्या कर लेता है। अभी उनका मान लिया 60 साल तक उनका टाइम था जीने का, लेकिन उसने 25 साल में ही आत्महत्या कर लिया, तो बाकी का जो समय है उसको ऐसे ही प्रेत योनि में बिताना पड़ता है। और प्रेत योनि में बहुत कष्ट होती है, वहाँ पे उसको भूख प्यास सब लगेगा, लेकिन कुछ खा नहीं सकता, शरीर ही नहीं है खाने के लिए। तो एक होता है ये सूक्ष्म शरीर, ये 2 शरीर होता है। हम साइंस में क्या जानते हैं कि हम जो मॉडर्न साइंस बता दे कि ये जो बाहर का जो बॉडी है, मटेरियल बॉडी, जो स्थूल शरीर है, इसके बारे में तो जानते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है इसके विषय में कोई नहीं जानता, इसके विषय में कोई बात भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। इसके बारे में कहाँ दिया हुआ है? शास्त्रों में दिया हुआ है, भगवत गीता में बताया हुआ है। प्रभुपाद हम सबको इस सब चीज़ों के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों जानना जरूरी है सारी चीज़ें? इसलिए कि हम सबको इन सब से मुक्त होना है। हम लोग को ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, इससे भी हमें मुक्त होना है। हमारा जो मन है ये जो है ना, हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। हम लोग को हमेशा प्राय यही फंसाता है। हम अपना गुरु किसको मान लेते हैं? मन को, कि जैसा मन में आएगा हम वैसा करते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोग को किसके आधार पर चलना चाहिए? गुरु साधु शास्त्र, जो हमें शास्त्र बताते हैं उनके अनुसार चलना चाहिए। आप लोग को समझ में आ रहा है कि हार्ड हो रहा है? हाँ ठीक है, अगर आप लगे तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर होता है। तो हम प्राय इसी 2 चीज के बारे में बात करते हैं प्राय, कि हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना अपने मन को सेटिस्फाई करने, कि मेरे को ये मन कर रहा है। तो ये जो मन कर रहा है बोलते हैं, तो हम किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? अपने सूक्ष्म शरीर को, मन को। फिर अहंकार को, ये जो अहंकार है तो सबसे ज्यादा प्राय हमारा दुश्मन है, कि हम अपने अहंकार को, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज्यादा हम कार्य करते हैं, कि ये मेरे को ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। तो जब हमारा अहंकार है, ये भी हमारा एक प्रकार का दुश्मन है, हमें इन सब से भी परे निकलना है। तो ये उसकी बात हो रही है। तो मन बुद्धि और अहंकार, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर, तो इसके बारे में प्राय लोग बात करते हैं। और दूसरा है अपनी समझ सामग्री सहित इस संसार की। तो जितना भी अपने सामग्री है, मतलब कि हम लोग इस संस्थान में रह रहे, तो जो भी हमको जो जरूरत की चीजें हैं वो तो हम बात करते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे हमारा जो इस संसार में जो चीजें घटते रहती है, जो प्राय क्या है, नश्वर, मतलब कि आज जैसे कि मान लिया आज से आप लोग को कोई 1 साल पहले का कोई ऐसा कुछ न्यूज़ पता है जो हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, मगर क्या आज उसका कोई इंपॉर्टेंस लगता है क्या? वो क्या ऐसा कोई ऐसा चीज़ है जो पहले हम बहुत इसको ज़रूरी देते थे, लेकिन आज लगता है कि सब फालतू का हमने इतना समय बर्बाद कर दिया? क्या ऐसा कोई चीज़ है? आप लोग मानते हैं ऐसा? तो ये जो चीज़ें इस संसार में ना, इसको बोलते हैं, इसमें जो हर चीज़ बदलता रहता है। इस संसार में हर चीज़ क्या है? बदलता रहता है। कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं है। आज यहाँ पे कोई मान लिया बहुत बड़ा नेता है, हो सकता है अगले जन्म में वो कुत्ता बन जाए, या हो सकता है अभी कुत्ता के जन्म में हो तो कभी वो अगला जन्म में पूरा वो राजा बन सकता है। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कौन कब क्या बनेगा, उसकी क्या स्थिति होगी, कुछ नहीं इसका कहा जा सकता। यहाँ पे सब अपने अपने कर्मों को लेके सब हम भटक रहे हैं, पर दर दर जाके हम कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। हम पूरा 84 लाख योनि में भटक रहे हैं। फिर हम इंसान का जब जन्म मिलता है तब भी हम भटकते हैं, क्योंकि जब तक हमको प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक जब हम तरीके से जब हम भक्ति करना शुरू नहीं करते तब तक भी हम भटक रहे हैं। प्राय क्या होता है, लोग अलग अलग गुरु में भी भटकते रहते हैं, कि आज कभी इस गुरु को सुन लिए, कभी अलग गुरु को कर लिए, तो क्या रहा, इधर भी हम भटक रहे हैं। तो ऐसे भटकते भटकते करते करते क्या होता है, हम अपना पूरा समय, ये जो मनुष्य जन्म है जो कितना महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मनुष्य जन्म, इसको हम गवा देते हैं ऐसी चीज़ों को प्राप्त करने में जो वास्तव में खत्म हो जाएगी। चाहे वो धन हो, पूरा जगत में जो भी चीज़ हम प्राप्त करने के लिए हम लगे हुए हैं, ये सब क्या होगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। चाहे जैसे कि हम इस संसार में 1 रुपये लेके भी नहीं आए थे, और ना हम 1 रुपये लेकर भी हम जाएंगे। हम इस संसार में ऐसे ही हम आए हैं अपने कर्मों को लेके, और फिर हम जो भी यहाँ पे कर्म किए उसी को लेके फिर हम जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे संसार में कुछ नहीं है, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है,
मगर जब हमारी जब चेतना माया में रहती है तो हम क्या करते हैं, सबको अपना मानते हैं। मतलब इस संसार में जो वास्तव में माया है, जो वास्तव में नहीं है, उसको हम अपना मानते हैं। और जो वास्तव में अपना है, जो भगवान है, जो कृष्ण है, जो हमारे अपने हैं, उनको हम अपना नहीं मानते। जो वैष्णव है, जो गुरु साधु है, जो शास्त्र है, जो एक्चुअल शास्त्र, उसको हम अपना नहीं मानते। लेकिन जो अपना नहीं है उसको हम अपना मानते। यही माया है, यही मोह माया, यही जो मोह है जिसमें पूरा दुनिया जो है ना लगा हुआ है। और ये मोह क्यों है? क्योंकि हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं कि हम सब क्या है, हम सब आत्मा है। और हम सब का भगवान से एक सनातन रिश्ता है, वो है उनकी सेवा करना, उनका दास का एक रिश्ता है कि हम उनकी सेवा करना। अब यहाँ पे दास का मतलब यहाँ पे गुलाम बनाने की बात नहीं होती है। प्राय सोचते अरे दास कैसे बोल दिए, हम प्रभु बोलना चाहिए ना। प्रभु कितना अच्छा लगता है, एकदम पूरा ईगो को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब दास बोल दे तो बाप रे बाप। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है ना हम लोग को गुलाम बनाने का बात होता है। दास ये जो है ना एक बहुत बड़ा प्रेम का एक स्तर है। भगवान के साथ जो हमारे एक प्रेम का एक रिश्ता है, जिसमें भगवान प्रेम से वो करते। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी जो है भगवान राम का कितना अच्छा सेवा करते हैं। तो क्या वहाँ पे कोई गुलाम बनाने की बात होता है क्या? वहाँ कितना प्रेम है, प्रभु के प्रति जो है हनुमान जी का कितना प्रेम है। तो उस प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे। भगवान के साथ भी हमारा ऐसा ही प्रेम है, मगर ये प्रेम क्या हो गया है, लुप्त हो चुका है, डूब गए हैं हम लोग। ये प्रेम का जो रिश्ता है ये खत्म हो चुका है, हम भूल चुके हैं ये रिश्ता। और इसलिए इस संसार में हम वो प्रेम ढूंढ रहे हैं, जो प्रेम हमारा भगवान के साथ है। वो प्रेम हम क्या ढूंढ रहे हैं, इस संसार में किसी व्यक्ति के साथ, किसी और के साथ वो प्रेम ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो प्रेम क्या होता है, हमको मिलता नहीं है, प्रायः धोखा मिलता है। क्योंकि ये धोखा देने के लिए बना है यहाँ पे, ये मटेरियल वर्ल्ड बना ही उसी के लिए है। तो ये जो प्रेम जो हमें भगवान से मिलना चाहिए, वो प्रेम हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इस संसार से वो पाने का ढूंढते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि हम सब कोई कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से, लेकिन हम वास्तव में कृष्ण को जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम किसी और चीज को प्राप्त करते हैं। हम अलग अलग प्रकार से कृष्ण को ही खोज रहे हैं। हमें एक परफेक्ट ह्यूमन चाहिए, एक ऐसा परफेक्ट हमें दोस्त चाहिए। लेकिन इस संसार में ऐसा कोई परफेक्ट दोस्त है नहीं। परफेक्ट दोस्त तो कौन है? कृष्णा ही है। एक परफेक्ट स्वामी चाहिए जिस पर हम पूर्ण रूप से आश्रित हो सके। लेकिन क्या होता है, इस संसार में भी जो सो कॉल्ड बॉस होते हैं हमारे, वो भी इतना परफेक्ट नहीं होते। या हमें ऐसा माता पिता चाहिए जो हमें परफेक्टली जो है हमें सब कुछ जो है ना जैसा होना चाहिए वैसा दे, लेकिन वो भी परफेक्टली नहीं हो पाता। या एक परफेक्ट पुत्र चाहिए जो हमारा पूरी तरीके से आज्ञा का पालन करे, जैसा करना चाहिए वैसा चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। हर जगह से हमें धोखा ही मिलता है। और धोखा खा के हम और ज़्यादा डिप्रेस और स्ट्रेस में चले जाते हैं। और इसी के कारण जो है लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है, और दुख पे दुख बढ़ता ही चला जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि हम जिसको ढूंढ रहे हैं, जो कृष्ण को, उस कृष्ण को भूलने के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो हम जब जान पाएंगे कि वास्तव में जिसको हम ढूंढ रहे वो कौन है, कृष्ण है, तब जाके जो है ना हम सुखी हो पाएंगे। जब हम अपने असली स्वामी जो कृष्णा है, असली स्वामी जो भगवान है, उनको जब हम उनको मिल जाएंगे, मतलब कि जब हम उनको प्राप्त कर लेंगे, तब हम असली में सुखी हो पाएंगे। नहीं तो हम केवल दर दर भटकते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, इधर लात खाएंगे, उधर लात खाएंगे, उधर गाली, इधर गाली। केवल एक प्रकार से केवल हम जैसे पशु होता है, पशु, गधा होता है, गधा क्या होता है, गधे क्या होता है कि बिना मतलब को काम करते रहता है। कितना गधे की तरह वो केवल काम करते रहता है। उसको पूछे क्यों काम कर रहे हैं, बोला हाँ मेरा मालिक मेरे को घास देता है खाने को। तो घास तो यहाँ सब जगह फैला हुआ है, खा सकते हो, लेकिन फिर भी तुम क्यों खा रहे हो? तो वो गधा उसको समझ में ही नहीं आता, तो केवल लगा रहता है। तो अपने आप को सोचता है कि हाँ मेरे को खाने को मिल रहा है, मेरे को दो चार कुछ पैसे मिल जाए, इसलिए वो गधे की तरह इस संसार में माया की सेवा करता रहता है। लेकिन वो भूल जाता है कि जो हमारे जो वास्तविक स्वामी है वो इन सब से परे है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज लोग भूल चुके हैं। तो उसी चीज को जागृत करने के लिए जो है श्रील प्रभुपाद पूरा मिशन चला रहे हैं। तो यही चीज है कि क्या होता है, हम सब इसी चीज के बारे में खोजते रहते हैं, लेकिन कभी वो चीज मिल नहीं पाता हर जगह, क्योंकि कलयुग में बहुत ज्यादा पाखंड है। कलयुग में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पीपल वांटेड टू बी चीटेड। लोग जो है धोखा खाना चाहते हैं। अगर उनको सही बात बताया जाए तो प्राय लोग नहीं सुनना चाहते। जैसे अभी तो बता रहा, आप लोग सुन रहे, लेकिन प्राय क्या होता है कि अगर उनको पब्लिकली जैसे बताया जाए कि हम लोग कृष्ण परम भगवान है और हम सब कृष्ण के नित्य दास है, तो प्राय लोग जो लोग द्वेषी लोग होते हैं वो इन सब चीज को सुनना नहीं चाहते। और उनको अगर कोई ठगने वाला कोई अगर मिल जाता तो पूरा वहां भीड़ लग जाएगा वहां पे।
जहाँ पे ठगी होता है वहाँ पे बहुत ही अलग, लेकिन जहाँ पे प्रभुपाद बोलते जहाँ हीरा बढ़ता है ना वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन जहाँ पे कुछ नकली माल मिलेगा वहाँ पे खूब मिलेगी, वहाँ पे खूब भीड़ होगा। लेकिन वास्तविक चीज़ क्या है कि वो हमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको असली चीज़ को प्राप्त करना है, तो उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है, तो उसके लिए योग्यता चाहिए। बहु जन्म के बाद, कई जन्मों जन्मों के बाद जब किसी के ऊपर भगवान कृष्ण की और गुरु की जब कृपा होती है तब उसको भक्ति लता बीज मिलती है, जब वहाँ से वो कृष्ण को जानने का प्रयास करता है। ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये जो प्रभुपाद हम सबको दे रहे हैं ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़, हम इसकी वैल्यू को समझते नहीं हैं। जैसे कि एक महिला थी, वो जो है ना उनके पास चंदन का पूरा एक वन था, पूरा जंगल, लेकिन वो ना चंदन का वैल्यू को जानती नहीं थी, तो क्या करती वो उस चंदन का जो पेड़ का वृक्ष उसको जलाने में वो इस्तेमाल करती है कि चलो इसको आज इसको जला के इससे मैं खाना बनाऊंगी। तो ये स्थिति होता है। या किसी को अगर हीरा मिल गया, एकदम पूरा मणि मिल गया, चिंता मणि, तो क्या होता है अगर उसको उसका वैल्यू नहीं पता तो क्या करेंगे, अरे इसको मेरे को ना कपड़ा धोने में इसका इस्तेमाल करते, कितना अच्छा कपड़ा साफ हो जाता है। तो यही स्थिति है, हम सबके पास सबसे कीमती चीज है वो है हरि नाम। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये बहुत कीमती चीज है, हम इसका वैल्यू नहीं समझते। जिस दिन इसका वैल्यू समझने लग जाएंगे उस दिन व्यक्ति सब छोड़ छाड़ के मतलब केवल नाम ही लेगा, लेकिन हम इसकी वैल्यू नहीं समझते। इसलिए जो है ना बहुत क्या होता है, हम इसको एकदम चीपली ले लेते हैं, और चीपली का मतलब होता है सहजियापंथी, कि हम जो है ना सस्ते में लेके रखे हैं। इसलिए जो है ना हमारा भगवान के प्रति वो मन नहीं लगता। इसलिए जो 11 नाम अपराध है, 10-11 नाम अपराध वो प्राय होते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम इसकी वैल्यू समझ जाएंगे उस दिन जो है ना उसकी वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति चालू होगी, स्टार्ट होगा उस दिन से उसका भक्ति चालू होगा। लेकिन जब तक हम जिसको हम नहीं सीरियसली लेते तब तक जो है ना हम बस भटकते रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे आता है कि लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है, अब यहाँ पे प्रायोगिक संसार में लोग इसी दो चीज़ के बारे में बात करते हैं, लोग एकदम लड़ने भी लग जाते हैं। हमारे देश के बारे में कैसे बोल दिया, हमारे जगह के बारे में कैसे बोल दिया, इसके बारे में कैसे। लोग अपने आप को क्या समझते हैं, संसार से करते हैं। जैसे कोई बोले कि हाँ मैं झारखंड का हूँ, फिर कोई बोले कि हाँ मैं बिहार का हूँ, मैं बांग्ला का हूँ। अब इस प्रकार से मिथ्या अहंकार में अपने आप को क्या बोलेगा कि हाँ देखो बांग्ला जो है इससे इतना अच्छा है, फिर कोई बिहार का कोई बोलेगा ये इतना अच्छा है, फिर झारखंड का बोले ईगो हट होगा, फिर वो बोलेगा ऐसा कैसे हो गया। तो लोग आपस में इस प्रकार से पॉलिटिक्स लड़ रहे हैं। लेकिन जो असली में जो ज्ञानी है वो जानता है कि ना तो हम झारखंड से हैं, ना तो हम बंगाल से हैं, ना तो हम भारत से, कुछ नहीं, हम सब जो है ना वास्तव में हम सब का अस्तित्व कृष्ण से आता है। और ये झारखंड बंगला ये सारी चीजें क्या है, ये सब तो कृष्ण का है। ये सारे जमीन किसका है, कृष्ण का है। ये सारी चीजें कृष्ण ने बनाया है। लोग समुद्र के लिए भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, देश आपस में इतना भयंकर लड़ाई कर रहा है कि एक दूसरे के ऊपर एटम बम, पूरा बमबारी चल रहा है, एकदम पूरा खून खराबा चल रहा है पूरे दुनिया में, पूरा वर्ल्ड वार चल रहा है। क्यों? एक जमीन के टुकड़े के लिए। लेकिन वो लोग जो इस बात को नहीं जानते कि वास्तव में जमीन किसका है, किसने बनाया है जमीन। जिसने बनाया वो तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन जो ने नहीं बनाया वो अपने आप को हथियाना चाहते हैं कि मेरा है। लोग भाई भी आपस में लड़ने लग जाते हैं, पूरा एक दूसरे का मर्डर तक करने को आ जाते हैं अपने पिता का संपत्ति के लिए। ये स्थिति आ गई। लोग कितना भी निकृष्ट गिर सकते हैं इस संसार में भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए, ये अज्ञान है। इसीलिए लोग पाप करते हैं, और इसी पाप के कारण वो कहा था फिर नरक में गिरते हैं, और नरक में गिर के फिर उनका बहुत बुरी स्थिति होती है। तो ये अज्ञान है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञानी है वो क्या जानता है कि ये सब कुछ भगवान का है। इवन हमारे ये जो शरीर है ये भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी भगवान का है। भगवान ने हमें उधारी दिया है कुछ समय के लिए, ताकि हम इस शरीर का इस्तेमाल करके भगवान की भक्ति कर सकें। लेकिन इस शरीर को भी हम अपना मान लेते हैं और अपने हिसाब से इसको चलाते हैं। इसलिए क्या होता है, दुख मिलता है, ये शरीर में हमें कष्ट मिलता है। लेकिन जब हम जानेंगे कि सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ कृष्ण का है, तो क्या करेगा, चुपचाप से इसको कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देगा, खत्म, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब ये अज्ञानता होती है तभी क्या होती है, पूरी तरीके से हम सब लड़ना झगड़ना ये सारी चीजें होते रहती है। और कलयुग में ये सबसे ज्यादा हो रहा है। कलयुग में सबसे ज्यादा लोग यही अज्ञान के कारण लोग लड़ाई कर रहे हैं। लोग एक दूसरे के एकदम पूरा गला काट कंपटीशन चल रहा है, पूरा एकदम खून खराब है, पूरा चूहा दौड़, यही पदवी को प्राप्त करने के लिए कि हमको ये पद चाहिए, ये हमको बड़ा ये पोस्ट पोजीशन चाहिए, जबकि हम उसके योग्य नहीं है, मगर फिर भी हमको चाहिए। इसलिए लड़ाई झगड़ा होते रहती है। और लड़ाई झगड़ा में क्या होता है, प्राय बिना केवल नुकसान ही होता है, कभी फायदा कभी नहीं हुआ। आज तक कभी भी किसी लड़ाई झगड़ा से
जो कि धर्म युद्ध नहीं है, ऐसे लड़ाई झगड़ा से कोई फायदा नहीं हुआ है, केवल दोनों का नुकसान हुआ है। लेकिन क्या होता है, हम प्राय इसमें लगे रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में आता है 12वें स्कंद में, पृथ्वी माता हंसती हैं, वो बोलती है कितने सारे राजा लोग आ गए, कितने सारे बड़े बड़े लोग आ गए संसार में, और सब मेरे को जीतना चाहते। लोग चाहते दुनिया मेरी मुट्ठी में हो जाए, तब तो बहुत मजा आ जाए। सब चाहते कि सब पूरा दुनिया मेरा हो जाए, भारत मेरा हो जाए, ये अमेरिका मेरा हो जाए, ये चाइना मेरा हो जाए, पृथ्वी मेरा हो जाए, जैसे कि उसका बाप का चल रहा है। तो लोग यही चाहते हैं। तो बड़े बड़े राजा आए और ये सब करके चले गए, लेकिन क्या होते हैं, उन सब मृत्यु के मुंह में, मौत के खाई में जाके गिर जाते हैं। कोई किसी का नहीं हो पाया। पृथ्वी जो बोल रही कि सब मेरे को प्राप्त करना चाहते, लेकिन सब मौत के कुएं में सब गिरने वाले हैं, और चले मेरे को प्राप्त करने के लिए। तो ये स्थिति हो गई है। तो यही सब चीजें चल रही हैं पूरे संसार में, पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है। सब बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन प्राप्त करने के लिए गला काट कंपटीशन चल रहा है, पूरा बड़ा बड़ा एकदम। ये सब के कारण क्या है, सब कोई एक दूसरे का मूर्ख की तरह सब ये सब ऐसा चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे जो वास्तव में उनका है ही नहीं। आज जिनका सच में है वो छोड़ दिए इनको कि जाओ इसको जो करना है करने दो। तो इसके चलते हो रहा है। लेकिन जो आध्यात्मवादी है, वो आध्यात्मवादी एक बोलते हैं, आध्यात्मवादी किसको बोलते हैं, जो स्पिरिचुअल है, जो अब जो इस संसार पे पूरा क्वेश्चन करते हैं, हर चीज पे क्वेश्चन करते हैं कि मैं कौन हूं। अब जैसे मैं सोचता कि हम लोग ये है वो, हम प्राय इस बात को मान लिए हैं। लेकिन जो आध्यात्मवादी होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं आखिर ये सारे दुख क्यों आती है, आखिर ये हम लोग है कौन, कहां से आए हैं, ये दुनिया क्या है, हम सब कौन है, ये संसार कैसे चलता है, ये सब कौन ये सब चीज चलाता है। ये जो सबसे जो इंटेलिजेंट क्लास है वो ऐसा सवाल पूछता है। लेकिन जिसकी चेतना पशु वाली है, जो 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 एक एनिमल की तरह जो है, जिसको क्या है कि बस खाने को मिल गया, सोने को मिल गया, बस हो गया, अपना काम हो गया, कंबल उड़ाओ सो जाओ। तो जो पशु वृत्ति वाले लोग होते हैं उसकी ऐसी चेतना होती है। लेकिन जो वास्तव में जिसके जो ह्यूमन है वो क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, इन सबसे परे क्या है, हम कैसे इन सब चीज से निकल सकते हैं। वो क्वेश्चन करता है। साइंटिस्ट भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो लोग जो है ना उसका आंसर गलत जगह से ढूंढते हैं, वो अपने से ही आंसर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो आध्यात्मवादी है वो भी सही क्वेश्चन करते हैं कि हम सब कौन है, कहाँ से आए हैं, ये सब क्या तरीका है, ये जो अब चीजें चल रही हैं ये क्या सच में हमारा है, ये जो हम घर परिवार जो हम जिसको हम अपना मानते क्या सच में हमारा है, क्या सच में ये देश जिसको हम अपना बोलते क्या सच में अपना ही है, क्या सच में ये जो पृथ्वी जिसको अपना सच में अपना है, क्या सच में ये सारी चीजें हैं जो मैं मानता हूँ, क्या वो सच में ऐसा है या कुछ और है। तो क्वेश्चन करता है। तो जब वो व्यक्ति क्वेश्चन करता है, अपने आप को जानने का प्रयास करता है, जब सुख के बारे में सोचता है कि असली सुख क्या है, हम कैसे हमेशा सुखी रह सकते हैं, जब इसके बारे में जब वो सवाल पूछता है, तो ऐसे लोगों को आध्यात्मवादी बोलते हैं, जो क्या है इस पशु जैसे ह्यूमन मनुष्य से थोड़ा परे है वो। और यही एक्चुअल इंटेलिजेंस है। तो जो न केवल अपने शरीर, मनो तथा इस संसार के प्रति चिंतित रहते हैं, अपितु इस दिव्य विषय के प्रति भी जो शरीर, मन तथा संसार के ऊपर है। तो जो आध्यात्मवादी लोग होते हैं, आध्यात्मवादी जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो केवल इस संसार के बारे में नहीं, वो अपने बारे में भी और इन सबसे जो परे का चीज़ है उसको वो ज़्यादा चिंता करते हैं। और जो भौतिकवादी लोग हैं वो क्या चिंता करते कि मेरे को बस आहार निद्रा भय मैथुन के, मतलब कि हमको अच्छे से खाना मिल जाए, हमको जो है ना सोने को मिल जाए, हमको जो अपना बचाव के लिए हमको थोड़ा चलो हम पैसा इकट्ठा कर ले, थोड़ा एकदम सेविंग्स कर लेते हैं, ताकि जो है ना कभी मुसीबत आ जाए तो काम आ जाए। अच्छी बात है, सेविंग्स करना चाहिए। तो लेकिन अगर कोई भगवान पे डिपेंड हो जाए तो वो ये भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मेरी रक्षा कौन करते हैं, भगवान करते हैं। तो इस पे फिर हम और बच्चा पैदा करें, इस सब चीज़ों पे विवाह करना, इस पे लोग ज़्यादा चिंता करते हैं। लोग बोलते हैं हाँ हमको 2 चीज़ चाहिए खाली ज़िंदगी में, एक नौकरी और एक छोकरी, हो गया बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो है ना प्राय जो भौतिकवादी लोग उनका ऐसी सोच होती है। लेकिन जो आध्यात्मवादी है वो जानते कि इन दोनों में दुख है, बल्कि सबसे बड़ा दुख इन्हीं 2 चीज़ में है, वो इस बात को जानते हैं। तो वो इन सबसे परे पे क्वेश्चन उठाते हैं, और वही असली मार्ग में जा रहा है जो इन सब पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। लेकिन जो इन सब चीज़ों में लिप्त है वो वास्तव में क्या है, पशु है, पशु जानवर है, जो आहार निद्रा भय मैथुन के लिए 4 चीज़ के बारे में ही जिज्ञासा करता है। लेकिन जब ये व्यक्ति इस चीज़ से निकलने लगता है तब उसका वो मनुष्य जीवन चालू होता है, तब जाके वो जो है इन सबसे परे के बारे में सोचता है, और वहाँ से उसकी स्पिरिचुअलिटी चालू होती है। और वहीं से श्रील प्रभुपाद जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं भूमिका से ही। ये आध्यात्मवादी परम सत्य के बारे में अत्यधिक चिंतित है,
जबकि सापेक्ष सत्य के प्रति बहुत ही कम। मतलब कि यहाँ पे बता रहे हैं जो आध्यात्मवादी होते हैं वो सच्चाई को जानना चाहते हैं कि सच्चाई आखिर क्या है, कौन है वास्तविक सत्य, परम सत्य क्या है। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा वेदों में आता है कि जब व्यक्ति जब इस संसार में भोग करते 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 जब बहुत ऊब जाता है तब उसको बोला जाता है कि अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो, अब तुम जानो कि इनसे परे भी कुछ चीज होती है। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उसमें बताया गया, जिससे प्रभुपाद बताते हैं हमें जानना चाहिए कि हम कौन है। तो आध्यात्मवादी लोग परम सत्य को जानना चाहते हैं कि ये परम सत्य क्या है, अर्थात भगवान कौन है, हम सबको कौन चला रहे हैं, कैसे ये सारी सृष्टि चलती है, इसके विषय में वो जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही है और हम सब इन सब से कैसे मुक्त हो सकते हैं। आध्यात्मवादी इस पर ज़्यादा चिंता करते हैं। लेकिन और जो सापेक्ष सत्य मतलब जिस संसार की जो चीज़ें हैं उसकी वो ज़्यादा चिंता नहीं करते, जब बल्कि क्या बोलते हैं कि अरे ये सब चीज़ें नश्वर है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है वो पूरा जो है मतलब प्रचार कर रहे थे। तो श्रीला प्रभुपाद जब उनसे जब भेंट हुआ तो वो बोलते हैं कि अभी देश को आज़ाद जब हो जाएगा ना तब प्रचार करेंगे, अभी पहले देश आज़ाद नहीं हुआ, कैसे किया जाए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत हेवी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं कि आज जैसे कि देश में ये जो आज गुलामी चल रही है ना, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी गुलामी हुआ करती थी, आज भी चल रही है और आगे चल के भी होगा ही। पहले भी हिरण्यकशिपु जैसे हुए करते थे, रावण जैसे लोग हुआ करते थे जो पूरे दुनिया में राज करते थे, आज भी उसी प्रकार के लोग राज कर रहे हैं। तो ये सभी संसार में चलता रहेगा, इसमें इस सब के पीछे हम पड़े रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें जो वास्तविक चीज़ों शास्त्र जो हमें बताते हैं परम सत्य के बारे में, भगवान के विषय में, जो हमें अपने आप को जानना, भगवान से हमें जुड़ना, ये जो चीज़ है इस पर हमें कार्य करना चाहिए। आत्मा का जो कल्याण है उस पर काम करना चाहिए। जब ये सारी बातें जब प्रभुपाद को उन्होंने बता, प्रभुपाद को एकदम पूरा एकदम झटका लगा हुआ। आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं ये तुम बहुत हेवी बात बहुत सही बात बोल रहे हैं कि संसार में सब चलता रहेगा। आज अगर कोई अंग्रेज आके गुलामी कर रहा है तो फिर अगला फिर हो सकता है कोई काले अंग्रेज आ जाए। काले अंग्रेज में लगी वो भारतीय ही होंगे लेकिन अंग्रेजों की तरह ही शासन करेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें होगी। लेकिन इन सब से हमें क्या लेना देना, हमें तो इन सब से क्या फर्क पड़ता है। सरकार आएंगी जाएंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, जो क्रिकेट मैच है उसका स्कोर भी आता जाता रहेगा, लेकिन हमको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मिलेगा ये सब जान के। अगर चलो मान लिया इंडिया पाकिस्तान ये सारी चीज़ें अगर मैच जीत भी गया, हमको क्या मिला ये सब करके। हम तो अपना कीमती समय तो इसमें गवा दिए, लेकिन इससे हमको क्या मिला। हमने जिस रिश्ताओं के पीछे हमने पूरा अपना समय दिया, इन सब करके हमें क्या मिला वास्तव में। हम जिसको इतना ज़्यादा समय दे रहे हैं, ये सब करके वास्तव में हमें क्या मिला। जो आध्यात्मवादी है वो ऐसा सवाल पूछते हैं। और हमारे पास जो समय है बहुत कीमती है। हम एक सेकंड भी, करोड़ों रुपए भी अगर हम दे दे तो हम एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते हैं हम एक सेकंड हम नहीं खरीद सकते। लेकिन हमें जो समय मिला है ये बहुत ही कीमती समय है। प्रभुपाद बताते हैं कि जो हमारा जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है, इतना आसानी से नहीं मिलता। ये जो मनुष्य का जन्म है बहुत ही दुर्लभ, कई पुण्य करने के बाद, कहो तो एकदम कई जन्मांतर के बाद हमको ये मनुष्य जन्म मिलता है। फिर अगर उसके बाद भी तुरंत जो है ना अगर गुरु कृष्ण का अगर कृपा हो तब जाके वो जो आध्यात्मिक में है कि हमको इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल के भगवान के धाम जाना है, इस पर वो कार्य करे, तो ये बहुत ही दुर्लभ है। तो जो आत्मा जो फॉर्चुनेट सोल्स जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं वही वास्तविक जो है ना सही मार्ग पर है। लेकिन जो इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं वो वास्तव में क्या अभी भी उसका चेतना पशु वाली है, वो अभी आध्यात्म में उन्नत नहीं हुए हैं वो, तो उनको होना चाहिए। इसके विषय में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग ही इस चीज़ से हो रही है। तो आध्यात्मवादी इस चीज़ पे काम करते हैं। तो ये आध्यात्मवादी कौन है? जो सामान्यतः संत, दार्शनिक, सुधारक, ईशदूत आदि कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे लोग उसको यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि आध्यात्मवादी जो संत होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो वास्तविक साधु संत, वो ऐसे ऐरा गरा नहीं, असली में जो साधु संत है वो लोग इस परम चीज़ पे काम करते हैं। इसलिए साधु संतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो चाणक्य पंडित बोलते हैं जिस दिन जब संसार में लोग साधु संतों का रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं तो पूरा शहर ही खत्म हो जाता है वहाँ पे। अगर वहाँ पे पता चला साधु संतों का अपमान हो रहा है, वहाँ पे उनको गाली गलौज किया जा रहा है, बहुत जब ये सब चीज़ें होने लगती है तो पूरा शहर ही खत्म हो जाता है। आप चाणक्य पंडित में आप जो है ना आप चाणक्य नीति में पढ़ सकते हैं, इसमें सब दिया हुआ है। दार्शनिक लोग, एक्चुअली जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो सोचते कि अरे इससे भी परे कुछ चीज़ें हैं,
तो उनको भी बारे में बता कर, सुधारक लोग जो चाहते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को बेटर बनाएं, एक बेहतर हम अपने आप को व्यक्ति बनाएं, उसके बारे में अभी बात हो रहा है। फिर यहाँ पे बोलते हैं ईश दूत, मतलब भगवान के दूत, प्रभुपाद को राजदूत भी बोलते हैं। तो ईश्वर के दूत का मतलब होता है जो भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि ईश्वर के दूत में जीसस क्राइस्ट को भी बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद जीसस क्राइस्ट का भी नाम लेते हैं। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट जो है जब प्रचार कर रहे थे, तो जो उनके नीच जो मतलब जो उनके सेवक लोग हैं, उन्होंने क्या किया, जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया। ये स्थिति है। तो जो साधु संत दूसरों पर कृपा करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको ही खत्म कर देते हैं। हरिदास ठाकुर, उन्होंने वो कितना मतलब कि कितने महान संत है, लेकिन में क्या होता है, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो साधु संतों पर ही अपमान करते हैं। तो अगर ऐसा चीजें होने लगेगी, जब साधु संतों का अपमान होना स्टार्ट हो जाएगा इस संसार में, तब ये संसार पूरी तरह से नरक से भी बदतर बन जाएगा उस टाइम। ये स्थिति ये सब बहुत भयंकर बताया गया है, भागवतम में सब जब जानेंगे। तो ये ईश्वर के दूत होते हैं। अभी जैसे कि कुछ ऐसे निकृष्ट जैसे दुष्ट लोग हैं, वो जैसे वो क्या करें, श्रील प्रभुपाद पे जो है ना वीडियोस बना रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो है ना जाके गए अंग्रेज में, जाके वहाँ पे कोई एक नशे का कोई चीज़ स्टार्ट कर दिया गया। एक नेटफ्लिक्स में एक नया कुछ अभी नए चीज़ें आ रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर होंगी संसार में, तो फिर क्या होगा, संसार ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा दुनिया कौन चला रहा है, साधु संत ही चला रहा है, जो वास्तविक में साधु संत है। तो उनके द्वारा ही चल, क्योंकि वो परम जो चीज़ है भगवान, उसके विषय में बात करते हैं, उसके विषय में कार्य होता है। लेकिन जब लोग इसका रिस्पेक्ट करने, जब अस्तित्व जब खत्म हो जाएगा, तो फिर संसार भी खत्म हो जाएगा। तो विभिन्न समस्याओं पर संसार के विभिन्न स्थानों में प्रकट होते हैं। तो ये जो आध्यात्मवादी हैं, ये संसार में अलग अलग जगह आते हैं और ये परम सत्य की दिव्य सेवा करते हैं और दिव्य जगत के संदेश का प्रचार करके मानवता की भी सेवा करते हैं। कितना बड़ी बात बता रहे हैं। ये जो एक्चुअल जो साधु संत होते हैं, वो क्या करते हैं, ये परम सत्य की, परम सत्य कौन है, ईश्वर परम सत्य, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो परम सत्य कौन है, कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम में भी आता है वो परम सत्य धीमहि, जो परम सत्य है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो परम सत्य वो कृष्ण है। इन्हीं से सारा अस्तित्व आया है। इनसे ही जो है, कृष्ण से ही सारे देवी देवता, कृष्ण से ही सारे ये जगत, कृष्ण से ही हम सब, कृष्ण से ही पूरा ये सब कुछ आया है। तो उनके विषय में ये बारे में जानते हैं और हमेशा उनकी सेवा करते हैं, सेवा कर रहे हैं और ये परम सत्य की सेवा करते हैं और मानवता का कल्याण करते हैं। मानवता का कल्याण कैसे हो सकता है, मानवता का कल्याण हो सकता है कि जब उसको जन्म मृत्यु के चक्र से भगवान के पास जब उसको लेके जाया जाता है, तब जाकर मानवता का कल्याण हो सकता है। लेकिन उसको छोड़ के हम कुछ भी करते। जैसे एक छोटा बच्चा है, मान लिया वो मेले में बिछुड़ गया, अपने माता पिता से बिछुड़ गया किसी प्रकार से। अब उसको कोई और व्यक्ति मिले, अब वो व्यक्ति जो है ना, उनको, अब बच्चा रो रहा है, अब उसको क्या कि उसको थोड़ा सा चॉकलेट दे दिए, उसको आइसक्रीम दे दिए, तो क्या होगा, रो रहा है, थोड़ी देर के लिए वो चुप हो जाएगा। लेकिन फिर मम्मी की याद आएगी, फिर उनको माता पिता की याद आएगी, या हो सके खाते खाते टाइप थोड़ा समय के लिए भूल भी जाए। लेकिन फिर वो सही से वो सुखी नहीं रह पाएगा। लेकिन जब वो व्यक्ति उसको अपने माता पिता के पास पहुंचा देगा, उस बच्चे को, तो ही उसका सबसे बड़ा कल्याण है। अगर हम उसको खुद ही पालने लगेंगे, क्या होगा, एक बार खिलाएंगे, फिर उसके बाद भूख लगेगी उसको, तो बार बार हम ही उसका फिर माता पिता बन जाना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन जो साधु संत होते क्या करते हैं, वो जो असली माता पिता भगवान के धाम में उसको ले जाने का बात करते हैं, तो वही चीज करते हैं। तो साधु संत का ये मेन कर्तव्य होता है। तो इन आध्यात्मवादियों के अनुसार मनुष्य को कुत्ते तथा बिल्लियों जैसे निम्न पशुओं की अपेक्षा अधिक चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये पशु भी मुख्यतः दो बातों के प्रति ही चिंता करते हैं। प्रभुपाद कितना हेवी बात बोलते हैं कि ये जो चिंता करना हुआ, अपने बारे में चिंता करना हुआ और जगह के बारे में चिंता करना हुआ, या आहार निद्रा भय और बच्चा पैदा कर, इसके बारे में जब लोग बात करते हैं, तो पशु भी यही चीज के बारे में ज्यादा चिंता करता है। पशु को खाली क्या चाहिए, खाने को मिल जाए तो वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन हमारी भी ये स्थिति अगर होगी, जैसे कि हम आते हैं कहीं पे भी जाते हैं, पता चले, जैसे शादियों में भी क्या होता है, लोग सोचते हैं खाने के लिए जाते हैं। प्रायः जो वैदिक कल्चर है उसमें जो लोग शादी में जाते थे, क्यों जाते थे, ताकि जो वर वधू है, जिनका विवाह हो रहा है, उनको आशीर्वाद दे सके, उनको जो है उनको देख सके कि हाँ इनका कैसा, सबको वो मेन मकसद होता था। लेकिन आजकल वो सब कुछ है, वो सब लेस है, लेकिन प्रायोरिटी होता है कि हाँ खाने को मिलेगा, तो पूरा दबा लिया जाएगा। तो जो पशु वृत्ति वाले लोग होते हैं उसकी ऐसी मानसिकता होती है। लेकिन हमें इन सबसे परे जाना चाहिए। वो क्या है,
कि परम सत्य को जानना। तो जो कुत्ते बिल्ली के वाला जो हिसाब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिसकी चेतना एनिमलिस्टिक होती है वो इसी 4 चीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो इंसान है वो इसकी चिंता नहीं करते। इंसान जो है हमेशा बड़े चीज की चिंता करते हैं, वो है कि हम कैसे भगवान के पास जाएंगे, हम कैसे भगवान के धाम जाएंगे, हम कब इस संसार से मुक्त होंगे, हम कब इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाएंगे, हम कब शुद्ध होंगे, हम कब शुद्ध भक्त बनेंगे, हमारा भगवान के साथ जो हमारा संबंध है कब जो है वो स्ट्रांग बनेगा। इसके विषय में ज्यादा चिंता करते हैं। वो कभी भी खाने के विषय में ज्यादा चिंता नहीं करते। वो ये नहीं सोचते चलो आज ये प्रसाद, कल क्या प्रसाद मिलेगा, इसके बारे में वो नहीं सोचते। उनको पता है कि वो भगवान से व्यवस्था करेंगे। एक बार जो व्यक्ति भगवान की शरणागत हो गया, या इवन जो शरणागत नहीं भी हुआ है उसकी भी भगवान ही पालन पोषण कर रहे हैं। तो भगवान ये सारी चीजें इंसानों की तो पूर्ति कर ही देते हैं, लेकिन जब वो परम सत्य के बारे में जब वो काम करता है, अर्थात जब स्पिरिचुअलिटी के बारे में, भक्ति के बारे में जब वो कार्य करता है, तो उसकी वो ज्यादा चिंता करता है कि हम कैसे भगवान को प्राप्त करें। यही असली चिंता होनी चाहिए कि हम कैसे जो है ना हम इन सारे चीजों से हम ऊपर उठ पाए। इसके बारे विषय में ज्यादा चिंता करते हैं, जो वो होते हैं असली मनुष्य। एक तो स्वयं और दूसरा संसार। मनुष्य के अलावा अन्य जीवों में दिव्य विषयों को समझने की क्षमता नहीं होती। जो मनुष्य है, हम सब जो मनुष्य हैं, हमारा जो चेतना है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो डेवलप्ड है कि नहीं। हम लोग जो है, हम जैसे एक पशु है वो कभी जो है वो क्वेश्चन नहीं उठा सकता। एक जानवर जो है वो उसको भगवत गीता समझाएंगे उसको नहीं समझ में आएगा। वो जो कथा नहीं सुन सकता। एक पशु को हम जैसे खाने को दे देंगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन जो इंसान होते हैं वो उनकी चेतना विकसित होती है। वो जो है उनका जो चेतना है वो डेवलप्ड है, हायर ये डेवलप्ड है ये। तो जो डेवलप्ड स्पीसीज है वो कौन है? इंसान है। तो इंसान जो है परम चीज के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन पशु नहीं करते। लेकिन प्राय इस संसार में आज जो है संसार का इतना ज्यादा दुर्गति हो चुका है, आज इतना सारा समाज पतित हो चुका है कि लोग प्राय इसी चीज के बारे में ही बात करते हैं। तो उनको प्रभुपाद बोलते हैं कि लोग 2 पैर वाले पशु हैं जो केवल इसी चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन हमारी चेतना क्या है? विकसित है। तो हमें इस विकसित चेतना को बड़ी चीज में लगाना चाहिए। एक प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जैसे एक जानवर जो है, जितना वो खाने में और सोने में जिसको जितना आनंद आता है, हम भी जब खाते और सोते हैं तो हमको भी उतना ही आनंद मिलता है जितना पशु को मिलता है। पशु को तो ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है, उनको वो सारी चीजें प्राप्त करना बहुत आसान है। लेकिन हम लोग जो है ना, हम इतना ज्यादा, हमारी चेतना जो है दूषित हो चुकी है कि हम भी उसी 4 चीज के पीछे भाग रहे हैं। और लेकिन क्या करें, उसके लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जानवर से भी ज्यादा मेहनत कर। जानवर भी शायद इतना मेहनत नहीं करता, उससे ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं इसी 4 चीज को प्राप्त करने के लिए। इतना पूरा दिन रात इतना भयंकर टाइप से इतना मेहनत करे, कड़ी मेहनत। लोग कितना कुछ नहीं करते, पूरा धूप में खड़ा रह के भी लोग मेहनत करते हैं। 2 बजे उठ जाते हैं। आप लोग को पता होगा जो लोग सब्जी बेचते हैं ना, वो सुबह 2 बजे उठ के चले जाते हैं सब अपना मंडी वगैरह लगाने के लिए। लेकिन अगर मान लिया 3:30 बजे या फिर 4 बजे मंगल आरती के लिए उठना हो तो उसमें हालत खराब हो जाती है। ये स्थिति होती है हमारी। तो लोग पैसों के लिए, इस 4 चीज के लिए लोग खूब मेहनत कर रहे हैं। इतना मेहनत तो जानवर भी नहीं करता। जानवर भी जो है ना एकदम पूरा वो एकदम मस्त रहता है, कहीं से भी उसको ये सब मिल ही जाएगा, कभी ना कभी उसकी चिंता नहीं करता वो। लेकिन इंसान बहुत चिंता करता है। वो सोचता है आज ये खत्म हो गया तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कहीं ना एक बोरा भर के अनाज पड़ा हुआ है, तो जैसे चिड़िया आएगी, चिड़िया क्या करेगी, क्या आएगी और कुछ दाना जितना उसको चाहिए वो चुग कर वो चली जाएगी। लेकिन इंसान होगा तो क्या करेगा, वो पूरा बोरा उठा के चला जाएगा। ये स्थिति है। तो इंसान की आज ये दुर्गति हो चुकी है कि वो मतलब पशु से भी बदतर हो गए हम, कि हम खाने के लिए भी हम बिल्कुल भी मतलब हमारा जो है ना, हम अपने सिक्योर नहीं है, ये पता नहीं आज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये स्थिति हो चुकी है। मगर जो हमारा जो चेतना है वो इन सबसे परे है। हम बहुत बड़े चीज के लिए काम कर सकते हैं, हम बहुत बड़ी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रायः हम इसी नश्वर चीज को प्राप्त करने के लिए केवल हम दिन रात गधे की तरह मेहनत करते रहते हैं, और अंततः वो मिलते भी नहीं है उतनी तरीके से जैसा हम चाहते हैं। अंततः दुख ही मिलता है। इतना मेहनत करने के बाद भी जो हम चाहते हैं, जैसा सुख हम चाहते हैं, जैसा इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति भी नहीं मिलता। फिर क्या होता है, और दुख ही मिलता है। तो यही चीज चल रहा है संसार में। प्रभुपाद इसी चीज पे पूरा क्वेश्चन मार्क करते हैं, इज दिस अ ह्यूमन लाइफ? क्या ये हम ये सच में एक मानवता का जीवन हम जी रहे हैं? ये हम सच में ये इंसान का जीवन है, या केवल हम एक पशु की तरह जी रहे हैं? इस पे श्रील प्रभुपाद क्वेश्चन उठाते हैं।
तो जो मनुष्य होता है, जो वास्तव में मनुष्य, वो इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करता, और वो क्या करता है, इसलिए मनुष्य को समस्त प्राणी में सर्वोच्च माना जाता है। और हमें इस उच्चतर पद की प्रकृति को समझना चाहिए। हमको जानना चाहिए कि जो इंसान का जो जन्म है ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये इंसान का जन्म बहुत ही कीमती है। लोग इवन बताया जाता है कि देवी देवता भी भारत भूमि में इंसान का जन्म प्राप्त करने के लिए वो लालायित होते हैं। हमें ऐसे ही मिल रहा है, हमको ये मिल रहा है, लेकिन हम इसकी कीमत को नहीं समझते। देवी देवता चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए, यहाँ पे, क्योंकि ये जो भारत भूमि है ये आध्यात्म में प्रगति करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये जो भारत जो है, यहाँ पे बहुत अच्छे से हम स्पिरिचुअलिटी में बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम यहाँ पे भी केवल इसी 4 चीज़ के बारे में ही हम करके हम अपना समय वेस्ट करते जाते हैं। तो इंसान का जन्म बहुत दुर्लभ है, हमको इसको वैल्यू देना चाहिए। हम अपना समय को इस परम अर्थ के चीज़ पे, परम चीज़ के पीछे हमको काम करना चाहिए, भगवान के पीछे हमें करना चाहिए। ये चीज़ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे। उत्पन्न हुए समस्त जीवों में सर्वोच्च जीव मनुष्य की चेतना तथा पूर्णतः विकसित होती है, तो वह स्वयं से तथा उस जगत से भी जिसमें वह रह रहा है उच्चतर विषयों के बारे में सोचने लगता है, अर्थात वह परम सत्य को समझने का प्रयास करता है। तो जो इंसान है वो इन सब से परे परम सत्य के बारे में जिज्ञासा कर सकता है। जैसे कोई जो सच में मतलब कि जो जिसकी चेतना विकसित होती है, हम उनको बलपूर्वक बोलेंगे तुम खाली एकदम एक शूद्र की तरफ तुम केवल काम करो और कुछ मत करो, क्वेश्चन मुझ पर नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। उसको मैं अगर स्लेव की तरह अगर रखना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वो क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। प्राय संसार में जो लोग हम जो इसके लिए हम इस संसार में जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। उसको बोला जाता है, जैसा बोला जा रहा है चुपचाप यही करने का, एक क्वेश्चन भी नहीं अलग करने का, चुपचाप से जैसा बोला गया वैसा करो और कुछ नहीं। तो उसकी जो चेतना है, जो विकसित जो होनी चाहिए, वो नहीं होती। जब अंग्रेज लोग भारत आए थे तो उनको भारतीयों को गुलाम बनाना था। वो लोग फैक्ट्री खोलना चाहते थे, और उनको फैक्ट्रीज में क्या चाहिए था, नौकर चाहिए था। पहले भारत में गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल में अपने जैसे आज लोग पेरेंट्स क्या करते, बच्चों को स्कूल को भेजने के लिए इतना लालायित होते हैं, उसी प्रकार से पहले गुरुकुल भेजा करते थे। और गुरुकुल में बच्चे बचपन से ही 5 साल की उम्र से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने गुरु से शास्त्रों का अध्ययन करते थे, सब कुछ सीखते थे, सब कुछ वो जानते थे, सब के बारे में। मैथ्स भी उसमें आता है, हर चीज़, चाहे वो भौतिक रूप से हो चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, हर चीज़ के बारे में वो जानते थे। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए तो उन लोगों ने देखा कि भारत जो सबसे ज़्यादा उन्नत है, भारत उस टाइम पे सोने की चिड़िया बोला जाता था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा धन दौलत था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नारायण की सेवा होती है। जहाँ पे नारायण की सेवा होती है वहाँ पे लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ पे नारायण नहीं है वहाँ पे लक्ष्मी भी नहीं हो सकती। प्राय लोग क्या करते हैं कि हम केवल लक्ष्मी को चाहते हैं, लेकिन नारायण को नहीं चाहिए। लक्ष्मी चाहिए लेकिन नारायण नहीं चाहिए, इसलिए वहाँ पे लक्ष्मी का अति चंचल होती है, वो ऐसा स्थान को त्याग देती है। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तव में कभी भी ना हम लोग को केवल शक्ति का अकेला पूजा नहीं करना चाहिए। शक्ति का पूजा हमेशा शक्तिमान के साथ, अर्थात जो शक्ति है, जो लक्ष्मी है, उनका पूजा कैसा होना चाहिए, हमेशा नारायण के साथ होना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी नारायण का पहले पूजा होता था। अभी क्या हो गया कि सब इतने ज़्यादा भौतिकवाद में हो गए कि हम पूजा पाठ भी करते क्यों हैं, इसी 4 चीज़ को प्राप्त करने के लिए, कि धन चाहिए, धनम देहि, पुत्रम देहि, ये सब चीज़ प्राप्त करने के लिए हम पूजा पाठ भी करते हैं। मतलब आप लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, प्राय संसार की ऐसी स्थिति हो चुकी है, स्पेशली जो देवी देवता के उपासक है वो भी भगवान के पास इसी 4 चीज़ के लिए जा रहे हैं। फिर फायदा क्या हुआ? फिर हम आध्यात्म में आ रहे हैं ताकि हम इस 4 चीज़ से ऊपर उठ सके, लेकिन हम आध्यात्म में भी आके इसी 4 चीज़ को ही प्राप्त करने के लिए लग रहे हैं, तो फिर तो ये उन्नत चेतना नहीं हुई। ठीक है ना? हरे कृष्णा, समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये जो स्थिति है भारत की, इतनी बुरी इसलिए हुई क्योंकि पहले गुरुकुल हुआ करते थे। तो भारत में जब अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोग क्या चाहते थे कि हमको गुलाम चाहिए जो हमारे फैक्ट्रीज में काम करे, उसको ना क्या बोलते हैं, एकदम मास रिक्रूटमेंट के रूप में उसको पूरा ढकेल दिया जाएगा। एकदम जैसे नहीं होता है कि एकदम जैसे भेड़ बकरी लोग एकदम पूरे ट्रक में भर के लेके जाया जाता है, वैसे आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वैसे मास रिक्रूटमेंट होता है। तो उसी प्रकार से एकदम उसको क्या करते, पूरा एकदम डाल दो वहाँ पे, लेबर की तरह ये लोग काम करें। लेकिन भारतीयों की चेतना बहुत विकसित है, वो इन सबसे परे के बारे में सोच सकती है।
लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, क्योंकि इसको गुलाम बना के रखना चाहते थे। तो इसीलिए जो है ये लोग क्या करते हैं, उसको दबा के, मतलब केवल पशु की तरह उसको मतलब कि रखना चाहते थे, शूद्र की तरह। शूद्र क्या होता है कि वो केवल इसी 4 चीज के बारे में कर सकता है और उससे ज्यादा कुछ सोच नहीं सकता। लेकिन जो ऊपर के जो होते हैं उनकी चेतना थोड़ा और विकसित होती है। लेकिन अगर कोई उन्नत चेतना है, उसको अगर ऐसा करके रखा जाए तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा कि अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये केवल ये खाने के लिए सब मेहनत करना, फिर मेहनत क्यों करे ताकि और खा सके, खा के क्या मिला ताकि और मेहनत कर सके, फिर मेहनत क्यों करे फिर और खा सके, फिर खाए क्यों ताकि ऊर्जा क्यों आएगा ताकि और मेहनत कर सके। तो ये तो फिर एक तरह से ये बस चल रहा है एक गधे की तरह। तो अगर हम मनुष्य अगर इस प्रकार से जिएंगे तो क्या होगा, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इससे प्राय लोग क्या होते हैं ना, जिनको ये शिक्षा नहीं मिलती, जिनको ये प्रभुपाद का ये जो दिव्य ग्रंथ है, जिनको भगवान के विषय में ज्ञान नहीं हुआ करता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं। प्राय आज स्पेशली जो यूथ है हमारा, भारत में सबसे ज्यादा यूथ है, लेकिन ये यूथ को जब डायरेक्शन नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को स्कूल में अच्छा मार्क्स नहीं आया, मेरे ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो क्या होता है वो इवन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इवन वो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, चाहे यूथ हो चाहे कोई भी हो। तो अगर उनको परम चीज के बारे में नहीं बताया जाएगा तो ये सबसे बड़ा हिंसा है। प्रभुपाद बोलते हैं एक हिंसा तो एक फिजिकल हिंसा हुआ, दूसरा जो सबसे बड़ा हिंसा है, जो एक्चुअल हिंसा है, वो है कि लोगों को मतलब कि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा हिंसा कर रहे हैं जनता पर। अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो यही सबसे बड़ा जनता का कल्याण है, लेकिन अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। उनको हम कृष्ण से विषय में नहीं बता रहे हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं। वरना क्या होगा, लोग यही होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, सुसाइड करेंगे, आत्महत्या करेंगे, कुछ ना कुछ फिर गलत आदमी में लग जाएंगे, ड्रग्स के शिकार हो जाएंगे। इस प्रकार से आज हो रही है, आज भारत में जो यूथ है वो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, वो ड्रग्स के भी शिकार हो रहे हैं, जो शराब के शिकार, स्मोकिंग करना, ये सारी चीजें जो लत हो रही है, ये क्यों हो रही है, क्योंकि लोग जो है सुखी नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। तो सुख को प्राप्त करने के लिए अलग अलग गलत साधन में चले जाते हैं और वो प्राय और दुख देता है। तो ये स्थिति हो रही है इंसानों की, और दर से और बदतर से बदतर जीवन होता जा रहा है। तो परम सत्य मनुष्य को तो संसार के दोनों को ही नियमित करता है, और उसे जानकर आध्यात्मवादी अपना गतिविधियों को नियमन सही मार्ग पर करता है। नियमन की यह विधि सामान्यतः श्रद्धा या धर्म की विधि कहलाती है। तब यहाँ पे आता है जो ऐसे मनुष्य हैं, ये लोग क्या होते हैं, जब इनका आध्यात्म का जीवन चालू होता है तो सबसे पहले आता है श्रद्धा। किस पर श्रद्धा? शास्त्रों पर श्रद्धा। कि जब जो भगवत गीता में जो हमें बताया गया है, ये कोई मतलब काल्पनिक चीजें नहीं है। जब व्यक्ति का श्रद्धा शास्त्रों के प्रति होने लगता है, तब वहां से उसकी भक्ति चालू होती है, यहाँ से उसकी जो है स्टार्ट होती है। तो ये जो आध्यात्मवादी लोग अर्थात जो साधु संत है, गुरु साधु जो है, ये लोग क्या करते हैं, लोगों को सबसे पहले श्रद्धा पे लाते हैं कि तुम पहले जानो कि इन सबसे परे एक चीज है, तब उसको समझ में आते हैं नहीं, ये बात सही बोल रहे हैं। फिर उनको फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब उनको शास्त्रों की बात बताई जाती है तो फिर उसको विश्वास होता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई जा रही है, ये हमारे कल्याण की है। तो उनका क्या होता है, फिर श्रद्धा होता है, शास्त्रों पर क्या होता है, उसका श्रद्धा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वहां से उनकी जो अब शास्त्र पे जब श्रद्धा होगा, तब वहां से जो शास्त्रों में जो विधि विधान की बातें बताई गई है, फिर वहां पे चीजों को पालन करेगा, और वहां से उसका क्या स्टार्ट होगा, धर्म। इसको बोलते हैं धर्म। जब शास्त्रों के आदेश का जब पालन करना स्टार्ट करता है तो धर्म के बारे में जब जानता है, इसको बोलते हैं धर्म। जब मनुष्य जो है परम चीज के बारे में जब बात करे, जब वो भगवान की जब सब स्टार्ट होता है, उसको धर्म बोलते हैं। कुछ भी केवल एक कम्युनिटी को धर्म नहीं बोला जाता। ये जो हिंदू बोला जाता है, हिंदू वर्ड कहीं पे भी शास्त्रों में नहीं आता। सनातन धर्म आता है, लेकिन ये हिंदू, ये सारे जो है ना, हिंदू मुस्लिम सब इंसानों ने बनाया है सब चीजें। और जो चीजें इंसानों ने बनाया है, लोग लड़ रहे हैं अपने आप को मिथ्या अहंकार में गलत चीज मान के कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। एक दूसरा अपने आप को कोई दूसरा धर्म का मानता है, सो कॉल्ड धर्म का मानता है, फिर कोई दूसरे अपने आप को दूसरा रिलीजन का मानता है, और दोनों अहंकार में रहते हैं कि देखो मेरा रिलीजन तेरे से श्रेष्ठ है। फिर वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरा तुमसे श्रेष्ठ है। तो दोनों मिथ्या अहंकार में आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन वास्तविक धर्म ये नहीं है। वास्तविक धर्म होती है कि जब इस मिथ्या अहंकार से ही जब हम ऊपर उठने लग जाए, तब वहां पे असली धर्म स्टार्ट होता है। तो वही धर्म यहाँ पे सनातन धर्म की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको धर्म बोला जाता है। तो ये जो धर्म है, इसको बोलते हैं सारे सभ्य जगत में हमें धर्म का कोई ना कोई रूप मिलता है। जहां पे भी सभ्यता है, सभ्यता का मतलब है जो इसको बोलते हैं आर्य, जो लोग जो विकसित चेतना वाले जो लोग हैं,
जो लोग बोलते हैं कि ये लोग काफ़ी मतलब वीआईपी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लोग ऐसे बोला कि ये लोग अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े खानदान के लोग हैं, बड़े लोग हैं। तो जिनको हम एक्चुअली जो बड़े बोलते हैं वो क्या है, धार्मिक होते हैं वो लोग। मतलब कि जो धर्म की बात करते हैं, यहाँ पे एक शब्द है जो बोलते हैं आर्यवर्त, आर्यंस, आर्य लोग, इनका भी आज बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, आर्यंस का भी, कि आर्यन इन्वेंटर्स को क्या क्या लोगों ने बना दिया है। लेकिन आर्यन का मतलब होता है कि जो सभ्य लोग हैं, जो लोग वेदों का पालन करते हैं, जो लोग भगवान की शिक्षाओं का पालन करते हैं, जो लोग बुद्धिमान लोग हैं, जो लोग पशु की तरह नहीं जीते, जो लोग अपनी आध्यात्मिक जीवन को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, इस ऐसे लोगों को आर्यव्रत कहा गया है। ये लोग अपनी आप को उन्नत करने के लिए कार्य करते हैं तो उनकी बात हो रही है। तो जो लोग वास्तव में उन्नत लोग हैं वो लोग क्या होते हैं, थोड़ा धार्मिक होते हैं। तो सारे सब जगत में हमें धर्म का कोई ना कोई रूप मिलता है। निस्संदेह जब मनुष्य धर्म विहीन होता है तो पशु तुल्य बन जाता है। जो लोग धार्मिक नहीं है वो क्या है, पशु है, उनका जीवन कुत्ते बिल्ली जैसा है। जो लोग धार्मिक नहीं है, महाभारत में एक श्लोक है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च पशु भी नरानाम, ये दोनों पशु में और मनुष्य में सेम होता है। लेकिन जो मनुष्य है वो क्या कर सकता है, धर्म का पालन कर सकता है। जानवर धर्म का पालन कर सकता है क्या? जानवर नहीं कर सकता। जानवर शादी करता है? जानवर शादी नहीं करते, लेकिन इंसान शादी कर सकते हैं, तो वो धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन पशु है वो नहीं करता। ये चीज प्रभुपाद बता रहे तो जो धर्म विहीन है वो जानवर है। जिसके जो धार्मिक नहीं है वो क्या है, पशु है, वो एनिमल है वो। तो धर्म को चाहे विभिन्न देशों, कालों तथा लोगों के अनुसार वर्णित किया जाए, लेकिन सभी किस्सों में इसका लक्ष्य न्यूनाधिक परम सत्य ही होता है। तो धर्म का मेन मकसद क्या है, परम सत्य को जानना, भगवान को जानना। रिलीजन मीन्स टू नो गॉड एंड टू लव हिम। धर्म का मतलब है कि हमारा ईश्वर से हमारा जो प्रेम है उसको जागृत करना, ये एक्चुअल धर्म है। धर्म का मतलब हिंसा करना नहीं होता। धर्म का मतलब अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ दिखा के दूसरों को नीचा दिखाना, ये धर्म का मेन लक्ष्य नहीं है। जो वास्तविक में धार्मिक है वो भगवान से प्रेम करते हैं, और जो भगवान से प्रेम करते हैं वो सबसे प्रेम कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान से प्रेम नहीं करते वो किसी से प्रेम नहीं कर सकते, वो केवल एक पशु के समान है वो। तो असली प्रेम कौन कर सकता है, जो भगवान से प्रेम करता है। इसलिए जो वास्तव में जो वैष्णव होते हैं वो एक चींटी को भी नहीं मारना चाहते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एक चींटी के अंदर भी कौन है, भगवान है, उनके अंदर भी भगवान है। अब जब वो चींटी को नहीं मार सकते, भला फिर कोई वैष्णव आपस में वैष्णव थोड़ी ना लड़ेंगे फिर, तो वो तो और भी ज्यादा उन्नत हो जाते हैं। तो जो विकसित चेतना होती है वो लोग भगवान को जानते हैं और देखते हैं कि भगवान हर जगह है, हर कण कण में भगवान है। ये भगवद गीता में आता है। वो यही जब आत्म साक्षात्कार जब उसकी चालू होती है तो भगवान की जानने लगते हैं, और फिर उनका भगवान के प्रति जो भक्ति है वो उसके जागृत होने लगती है। भगवान के साथ जो उसका प्रेम है वो जागृत होता है, और इस प्रकार से वो व्यक्ति धार्मिक होता है और सबसे वो प्रेम कर सकता है। और यही असली प्रेम है, वासुदेव कुटुंबकम। असली जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हमको पूरा दुनिया को एक करना है, शांति लाना, अगर हमको दुनिया में शांति लाना है, तो शांति लाने का एकमात्र तरीका क्या है कि हम भगवान से प्रेम करें। जो भगवान से प्रेम करेगा वो सबसे प्रेम कर पाएगी, पूरा सिर्फ दुनिया ही परिवार बन जाएगी। लेकिन जब भगवान से प्रेम नहीं होता तो क्या होता है, ये टूटता जाता है। पहले जो है ना न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी, बड़ा फैमिली हुआ करती थी। आज क्या हो गया है, फैमिली कट कट के क्या हो गया, आज मतलब एक छोटा सा फैमिली हो गया है। फिर वो भी आजकल कट गया है। मतलब कि छोटा फैमिली, अब एक हस्बैंड वाइफ और पुत्र पुत्री वो रहते हैं, एक फैमिली हो गया। फिर अब ये भी कट गया है, उसमें भी अब क्या होता है कि आदमी और उसका कुत्ता रहता है, ये एक छोटा फैमिली बन गया। तो ये इतना परिवार भी कटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। जहां प्रेम नहीं होता वहां पे लोग कभी भी चैन से नहीं जी सकते। आप लोग स्वयं इस बात को देख सकते हैं। जहां प्रेम नहीं वहां पे जाने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन जहां पे लोग प्रेम से बातें करते हैं, जहां प्रेम होता है वहां पे सब करते हैं। समय और कितना हो गया? ठीक है, तो समय हो रहा है। ठीक है फटाफट क्वेश्चन पूछ लीजिए प्रभुजन माता। तो ये सारी चीजें हैं। तो अंततः यही चीज है, मैं फाइनली इसको एंड करता हूँ। तो जो इंसान का धर्म क्या है, भगवान को जानना और अपने आप को शुद्ध करना। और इस प्रकार से वो क्या कर सकता है, भगवान को जान के भगवान के धाम जा सकता है। और उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आगे प्रभुपाद बताते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हरि नाम लेना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना होगा। तो जब हम भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान का नाम लेंगे, जब नाम संकीर्तन यज्ञ होगा, जब हम भगवान का नाम का जप करेंगे, तो यही हमें भगवान के साथ जो भूला हुआ प्रेम है उसको जागृत कर सकता है। ये हरिनाम का जो सबसे बड़ा चीज वो हमें क्या दे रहा है, वो है कृष्ण प्रेम। ये सबसे बड़ा धन क्या है, कृष्ण प्रेम। इससे बड़ा चीज और कुछ नहीं है। ये चीज चैतन्य महाप्रभु हमें देने के लिए आए हैं, तो हमें इसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही वास्तविक में वो मनुष्य है। लेकिन जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए नहीं करता, वो क्या है, पशु की तरह, फिर इसी संसार में फंसा रहता है। धन्यवाद आप सभी का ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा माधव अष्टकी की जय, गौरनीताय पंचतत्व, श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सबका कोई प्रश्न हो तो आप लोग कृपया करके पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न या कोई कमेंट हो तो। क्वेश्चन है प्रभु। हाँ पूछिए माता जी। नहीं करना है, ठीक ठीक। पूछिए माता जी, क्वेश्चन पूछिए। हाँ, आपने जितना पाप किया इसलिए मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। मतलब बेसिकली है एक देवी देवता भी जो है ना, वो मनुष्य रूप में आना चाहते हैं ताकि हम भगवान का सेवा कर सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। लेकिन फिर उनका कहना है कि लोग तो पाप कर्म कर रहे हैं, फिर मनुष्य, मतलब हम लोग इतना पाप कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ इंसान का जन्म पाए हैं। ये चीज है ना। एक्चुअली क्या है ना, ये एक तरह का अज्ञान है कि हम बहुत पाप किए इसलिए मनुष्य जन्म पाए। वास्तव में हमारा पाप जब कम हो जाती है या जब हमारे ऊपर पुण्य होता है तभी हमें मनुष्य जन्म मिलता है। पापी व्यक्ति का क्या गति होता है, कपिल भगवान बताते हैं कि जो बहुत बड़ा पापी होता है वो सबसे पहले तो नरक जाता है। तो नरक में जब उसका अपना पाप का दंड भोग लेता है, उसके बाद वो इस जगत में इंसान के जन्म नहीं पाता, वो जानवर का जन्म पाता। वो चाहे वो सुअर बनेगा, कीट पतंग बनेंगे, वो कुत्ता बनेगा, इस प्रकार से जन्म होता है। फिर वहां से जब धीरे धीरे उसका प्रगति होता जाता है तब वो इंसान का जन्म मिलता है। अब लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज इतना ज़्यादा आज समाज में इतना डिमोनिक पीपल है, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, इसकी संगति के कारण हम सब भी बिगड़ गए हैं। हम सब के अंदर बहुत अच्छा, हमारे अंदर जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो बहुत अच्छा वो सुसंस्कार के होते हैं, लेकिन जब वो गलत संगति करता है उसके कारण वो बिगड़ जाता है और बिगड़ने के कारण वो भी गलत काम करने लगता है। तो हमारा मनुष्य जन्म वास्तव में बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन हम इस बात को भूल गए हैं। जब हम अपने माता के गर्भ में थे तो उस टाइम पे हम भगवान को प्रार्थना किए थे कि प्रभु आप मेरे को ना इस बोरी, जैसे एक बोरा होता है ना, बोरा में मान ली किसी को ना बांध के रख दिया जाए और 9 महीना के लिए उसको केवल एक पाइप से अगर खाना दिया जाए तो कैसा लगेगा उसको, और अंदर भी पूरा कीड़े मकोड़े। तो अगर ऐसा स्थिति में रखा जाएगा तो वो क्या होता है, उसको बहुत कष्ट होती है। तो ऐसी स्थिति में भगवान से प्रार्थना करते कि आप मेरे को यहाँ से निकालिए, तो फिर भगवान उसको निकालते हैं वहाँ से। तो हम सब प्रार्थना किए थे कि जब मैं बाहर आऊँगा तो क्या करूँगा, मैं बाहर आऊँगी तो क्या करूँगी, आपकी भक्ति करूँगी। लेकिन हम आते क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं और फिर से वापस से पैदा होते बोलता है ये मेरा इंजीनियर बनेगा अभी तो हम फिर संसार में फंस जाते हैं, फिर गलत संगति कारण फिर से हो जाते हैं। तो जो पाप है, पाप का फल तो हमें आता है। पाप 2 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध पाप मतलब कि जो हमने पहले कर रखा है वो हमको अभी इसी जन्म में मिल रहा है वो कष्ट, और अप्रारब्ध मतलब कि अभी वो उसका कष्ट मिला नहीं है लेकिन आगे चल के वो मिलेगा, वो होता है अप्रारब्ध। लेकिन हम जब भक्ति करते हैं, अच्छे से भक्ति करेंगे तो ये दोनों पाप हटते हैं धीरे धीरे। तो ये चीज़ है। तो हम जैसा भी कर्मों के हिसाब से हम आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मनुष्य जन्म पा रहे तो बहुत बड़ा पापी है इसलिए मनुष्य जन्म मिला, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा पुण्य है या बहुत बड़ा कृपा है कि हमको मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन हम इसकी वैल्यू नहीं समझते, इसलिए पापी व्यक्ति की तरह जब काम करते हैं तो कष्ट भी पापी व्यक्ति की तरह मिलता है, इसलिए लगता है कि हम पापी ही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ये शास्त्र की वाणी प्रभुपाद बता रहे हैं सबका कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये इसको लोग हटा देते हैं। लोग स्पेशली जो डिमोनिक पीपल होते हैं ना, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो लोग ऐसा बातें करते हैं। जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो प्रायः साधु संतों के प्रति बहुत क्रोधित होते हैं, भगवान और भक्तों से द्वेष करते हैं, ऐसे लोग ही जो है ना इस प्रकार का मतलब सब करेंगे। लेकिन वास्तव में जो भक्त है या जिनका इनके थोड़ा भी श्रद्धा है, वो जानते हैं कि हमारे इंसान का जो जन्म है बहुत दुर्लभ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरे कृष्ण।
नेक्स्ट पूछो। क्वेश्चन कोई वो नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई है? जी तो ये तो शुरू से ही चले आ रहा है। जब महाभारत में हुआ था तो फिर किसने क्यों करवाया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। माता जी कहते शुरू से चला आ रहा है। आपको शुरू से मैं बता दूं, ये द्वापर युग के नहीं, ये सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग में भी जो है ना, जो हिरण्यकशिपु था, उसने पूरा जो है ना यहाँ पे राज्य पाने का प्रयास किया था। वो जब ऐसा राज करता था ना, वो बोलता था इंद्र चलो बारिश करो, तो बारिश करता था। इंद्र को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया था। रावण भी कोई साधारण नहीं था, वो भी बहुत हेवी लेवल का असुर था। वो लोग बहुत बड़ा एकदम पूरा सब कुछ जानते थे, उनके पास बहुत शक्ति था। तो वास्तव में जो डिमोनिक पीपल होते हैं, ये सारे लोग यही चीज चाहते हैं। आप देखेंगे जो दुर्योधन लोग हैं, वो भी यही चाहते थे कि राज सत्ता चाहते थे। लेकिन वास्तव में शास्त्र बताते हैं कि जो राज है, जो सत्ता है, ये किसी बाप का नहीं है। ये वास्तव में भगवान की ही एक पद है। भगवान किसी को बैठाते हैं वहां पे। राजा का कर्तव्य क्या है? राजा को भगवान का प्रतिनिधि बोला जाता है। राजा जो होता है भगवान का प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन जो राजा बनता है लेकिन भगवान का प्रतिनिधि नहीं है, वो राजा नहीं है। जो वास्तव में ऐसा करना चाहता है, जो केवल राजा बनना चाहता है, स्वयं खुद भगवान बनना चाहता है, ऐसे लोग वास्तव में योग्य नहीं है राजा बनने के। और यही लोग जो है ना, ये सब चीज चाहते हैं। और जो योग्य व्यक्ति जैसे कि युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर महाराज जी लोग योग्य व्यक्ति हैं। वो अच्छे से राजपाट चला सकते थे। लेकिन ये लोग क्या चाहते थे कि नहीं, इसको हम आने नहीं देंगे। धृतराष्ट्र जो है द्वेष करता था। वो नहीं चाहता था कि पांडवों के पुत्र जो है ना वो राज करे, इसलिए वो दुर्योधन का साथ देता था। तो वो उसके अंदर वो द्वेष था। इसलिए भगवान ने ऐसे दुष्टों को संहार करने के लिए युद्ध करना जरूरी है। अगर युद्ध नहीं होगा ऐसे दुष्टों का विनाश करने के लिए, अगर धर्म युद्ध नहीं होगा, तो पूरा संसार में एकदम पूरा महामारी मतलब कि पूरा संसार में चोरू चक्कों से भर जाएगा। और पूरा संसार में एकदम पूरा, अभी कहीं भी टेररिस्ट आ सकता है। अभी क्या पता, जैसे हम सब बैठे यहीं भी टेररिस्ट आ जाए। अगर धर्म युद्ध नहीं होगा, अगर दुष्टों को अगर हम दंड नहीं देंगे, तो फिर जो है फिर राज में फिर अच्छे से लोग रह नहीं पाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने जो युद्ध कराया वो धर्म युद्ध है, और वो होना सही है। लेकिन जो असुर लोग जो युद्ध करते हैं वो गलत है, क्योंकि वो लोग केवल राज्य चाहते हैं। वो भगवान का प्रतिनिधि वो नहीं बनना चाहते। वो शास्त्रों के अनुसार वो राज्य करना नहीं चाहते। इसलिए तो ऐसे लोगों को दंड जो भगवान ने दिया वो सही किया, गलत नहीं किया। भगवान राम ने भी दंड दिया। सबने जो भी वास्तव में जो क्षत्रिय हैं वो दंड देते हैं, उनका कर्तव्य है दंड देना। लेकिन जो दंड नहीं दे रहे फिर वो नपुंसक है। फिर ये स्थिति है। हरे कृष्ण, आपको जवाब मिल गया? ठीक है, और कोई प्रश्न है? लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि जैसे बार बार हम लोग ये लेक्चर में सुनते हैं कि हम लोग को भौतिक जीवन से थोड़ा सा मतलब दूर रहना है, या फिर भौतिक जीवन नहीं जीना है, ऐसा कृष्णा कॉन्शियसनेस में जीना है। तो प्रभु जी, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो ये तो एक नियम है ना कि मतलब बड़े होना है, शादी करना है, बच्चा जन्म देना है, फिर उस बच्चे को बड़ा करना है, फिर उस बच्चे की शादी करना है। तो ये तो एक मतलब ये भी तो एक कर्म में ही आता है ना। परंपरा ये चली आ रही है। हाँ, ये भी तो कर्म में ही आता है प्रभु जी। और एक और बात प्रभु जी, कि कृष्णा बोलते हैं कि कर्म ही मतलब एक इंसान को कर्म, उसका कर्म अगर कर्तव्य पहले करना चाहिए, ऐसा। तो ये तो सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम लोग अपने परिवार को चलाएं। हाँ, माता जी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम घर परिवार को चलाएं। अपने जो परिवार होते हैं इनको पालन पोषण करना चाहिए। सही बात है, गलत बात नहीं बताया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बताते हैं कि हम परिवार को कैसे चलाएं। जैसे पशु पालते वैसे चलाना चाहिए क्या? वास्तव में परिवार का चलाने का तरीका होता है, वो भी शास्त्र में बताया गया है। जैसे बताया जाए धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म जब हम करते तो उससे अर्थ आता है, फिर उससे जो है ना कामनाएं सारी पूरी होती है। और जब वो सारी कामनाएं पूरी होती है, जब वो व्यक्ति बोर हो जाता है, उब जाता है, तब वो मोक्ष की प्राप्ति करती है। तो इसके लिए वर्णाश्रम बनाया गया है। वर्ण आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम होते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये एक्चुअल तरीका है। तो शास्त्र बताते हैं, भगवान स्वयं बताते हैं कि जब व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसको गुरु के निर्देश में शास्त्रों का सीखना चाहिए, उसको ज्ञान लेना चाहिए। तो उसके बाद जब वो बचपन से जब अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब सीखता है, तब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तब वो भी एक्चुअली क्या एक आश्रम है, वो हमारा घर नहीं है,
एक आश्रम है। आश्रम का मतलब होता है कि हम उस पर प्रवेश कर रहे हैं। मेन मकसद तो भगवान को प्राप्ति करना है, लेकिन वो विवाह करेगा। विवाह करके वो क्या करेंगे? कृष्ण भावनामृत संतान को उत्पन्न करना। मतलब कि एक विधि से जब संतान उत्पन्न होते हैं, पहले गर्भाधान संस्कार होता था, पहले पूरे जो 14 संस्कार हुआ करते थे, जो है ना, वो सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन आजकल ऐसे संस्कार नहीं होते। प्रभुपाद तो बहुत हेवी बोलते हैं। प्रभुपाद तो बोलते हैं कि कुत्ते बिल्ली की तरफ संतान पैदा नहीं करना चाहिए। अगर जब ऐसा होता है तभी समाज में अवांछित संतान उत्पन्न होते हैं, जो बचपन से ही गलत काम करते हैं। जो बच्चे लोग बचपन से ही जो गलत काम करते हैं ना, उसका ये स्थिति क्यों होता है? क्योंकि गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ। तो ये सारे जो कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है कि वो बचपन से जो है ना वो सारी चीजें करे। लेकिन दिक्कत है कि उसको बचपन से आप आज तक पढ़ा ही नहीं गया, क्योंकि उसने कहाँ पढ़ाई किया? स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल में थोड़ी ना बताया जाता है। स्कूल में सिखाया जाता है कि प्रोटीन चाहिए तो तुम मांस खाओ, ये सिखाया जाता है। तो उसको क्या मालूम? उसको नहीं पता कि संस्कार होते हैं, 14 संस्कार होते हैं, कई प्रकार के संस्कार है। जब बच्चा का जन्म होता है उस टाइम में भी संस्कार होते हैं, जन्म होने से पहले भी संस्कार होते हैं, ताकि अच्छा पुत्र आए उसके लिए भी जो है ना लोग यज्ञ करते हैं, कई सारी चीजें करते हैं। ऐसे नहीं हो जाता है। ऐसे करेंगे तो क्या होगा? असुर जैसे लोग आएंगे, फिर बोलेगा हमारा जीना हराम कर दिया है ये तो पूरा। तो ऐसे संतान क्यों होते हैं? जब गर्भाधान संस्कार नहीं होता। लेकिन जब विधि विधान के अनुसार जब हम वर्ण आश्रम का पालन करेंगे, तब जो हम जो कर्तव्य करें वो सही से होगा। प्रभुपाद का बाकी का 50% जो है ना मिशन वो वर्णाश्रम है। पहला वर्ण जो है ना वो तो चल ही रहा है, लेकिन आगे का जो है वो वर्णाश्रम है, कि वर्णाश्रम का स्थापना हो। यही जो है बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि लोग आज वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे। लोग क्या करते? गृहस्थ में रहते, पूरा मरते दम तक ही गृहस्थ में रहते हैं। जबकि शास्त्र बताता है कि 50 साल बाद हमें घर द्वार छोड़ देना चाहिए, फिर हमें और ज्यादा हाई लेवल पे हमें काम करना चाहिए। लेकिन जो है ना घर ही नहीं छूटती, इतनी आसक्ति होती है। क्यों? क्योंकि हम बंधे हैं, मगर वो बंधन दिखता नहीं है ना, इसे क्योंकि रस्सी नहीं ना दिख रहा अभी हम लोग को, मगर क्या है कि ये ही माया का रस्सी है। तो संस्कार होते हैं। जब माता पिता जब ऐसे संस्कार करते तब जब ऐसे कैसे संतान आते हैं? एक भक्त जैसे एक देव के तरह जो पुत्र आते हैं, जो बहुत ही आज्ञाकारी होता है। और वो ऐसे संतानों को पालन पोषण करना, वो भी धार्मिक विधि से, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज होता था पहले। फिर उसको भी फिर गुरुकुल में रहते थे, फिर आगे चल के फिर उसका भी विधि से। और उसका जब विवाह भी होता था ना, तो ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को अच्छा लगा, देखो इसका कितना सैलरी आता है, उसके सैलरी के पैकेज के हिसाब से उसका शादी नहीं होता था। उसका पहले क्या होता था? देखा जाता था कि इसका जो है ना मतलब कि कैसा, मतलब इसका कुल है, इसका क्या मतलब इसका स्वभाव है, उस हिसाब से पूरा लकीरें पूरा देखी जाती थी। फिर विवाह होता था। इसलिए पहले जब विवाह होता था तो कभी तालाक नहीं होता था, क्योंकि उसका अच्छे से जमता था, क्योंकि विधि के अनुसार हो रहा है। लेकिन आजकल क्या है कि देखे हाँ लड़का का खूब पैसा है, लड़की सुंदर है, तो फिर कर दो। फिर क्या होता है? आगे चल के लड़ाई होता है, डिवोर्स होता है, क्योंकि बनता नहीं आपस में। तो वो फिर एक वो जानवर की तरह हो गया। लेकिन शास्त्र में हर चीज बताया गया है कि अगर हमको गृहस्थ धर्म में आना है तो कैसे करना है, ये भी शास्त्र बताता है। तो उसके हिसाब से जब हम चलते हैं तब सही से होता है। हरे कृष्णा। और प्रभु जी, लोगों के बीच में एक मिथ है कि गुरुकुल में बच्चे ब्रह्मचर्य